Hello students, I'm your English teacher, Mrs. Kavita Madhani, and I am back with one kind of noun, abstract noun. Before this video or in previous video, I just taught you what is common noun and what is proper noun. And you know what is noun. And noun gives the answer of what, who and where. Okay, the names of things, person, place, and animals and ideas. Okay students, up see in your pictures, these pictures you are seeing 5 senses. Okay, see, hear, okay, smell, touch and taste. They are our 5 senses. So what are we are doing with these 5 senses? We are touching the things, we are smelling the things. So things, they are physically exist in our world are called concrete noun. Okay, so but in abstract noun we cannot touch, we cannot feel, we cannot see, we cannot taste and we cannot touch. Okay, you can't preside with 5 main senses. Okay, so what is an abstract noun? अब what क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर नाउन फिजिकली रूप में आपको सामने आपकी दिखाई देती है. जैसे आपकी मम्मी, शी इज़ ए पर्सन, वो आपको दिखाई दे रही है. आपके सामने टीवी है, वह फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में आपके सामने है. आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो. बट वन वर्ड इज़ द आइडिया. ओके, जस्ट आई टोल्ड यू कि द नेम ऑफ आइडिया. तो स्टूडेंट्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो क्या होती है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रिप्रेजेंट करती है? इंटेजिबल आइडियाज़. ओके, जो है फिजिकल और जो टेंजिबल थिंग्स exist in world are called concrete noun. And abstract noun means we cannot use our 5 senses to see, to touch, to taste and to hear. We can only feel. हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है. स्टूडेंट्स, see, we are having abstract noun is something you cannot touch, you cannot hear, you cannot smell, you cannot taste and you cannot see. See, bravery, you know, I'm saying that he is a brave boy. वह बहुत बहादुर बच्चा है. तो वह बहादुर बच्चा है तो उस बहादुर बच्चे की जो क्वालिटी है वो है ब्रेवरी. तो यू नो कि हमने वो ब्रेवरी हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ओके, ना हम उसे टच कर सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं. एंगर, यू नो, एंगर वी कैन सी, we cannot feel, we cannot see, we cannot, in physical form there is no anger. Okay, but you can feel. If I'm shouting, if I'm screaming, sometimes you know I'm shouting, I'm screaming, it means I am furious and I am angry. So you can feel my anger, but you cannot see, you cannot touch, you cannot taste. Okay, so last, you know, you can say abstract nouns represents intangible ideas, things you can't precise with these 5 main senses, like love, time, beauty. They all are abstract nouns. Okay, you can't touch them, you can't see them. Okay, without a tangible frame of reference, abstract noun can be hard to pin down with 5 senses. Okay students, now what is the technically definition of abstract noun? Okay, मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन
आपके जो आइडियाज़, आपके कॉन्सेप्ट, आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब नाउ सी हियर, an abstract noun is a noun that refers to an intangible concept such as an emotion, a feeling, a quality, or an idea. In other words, an abstract noun does not refer to a physical object. समझ में आया स्टूडेंट? जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आपको सब दिख रहे हैं वो सब कॉन्क्रीट नाउन है, यानी कि वो फिजिकल रूप में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ओके। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैन फील, यू कैन लाइक यू कैन फील ओनली, ओके। माई लव, आप सिर्फ फील कर सकते हो कि या माई एंगर, यू कैन फील beauty. I'm saying that she is very beautiful, so we can prescribe their beauty only, her beauty only, okay. So we can say ki, see, it is something, it is sometimes helpful to think of an abstract noun as a word that names something that you cannot see, hear, touch, smell or taste. You cannot perceive with one of your five senses for, okay. मतलब आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ नहीं कर सकते हो उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए। बार बार मैं स्टूडेंट्स में यही फोकस की जा रही हूँ कि जो हमारे 5 सेंसेस है हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सी हियर नेक्स्ट, अब सी फीलिंग्स, कौन कौन सी फीलिंग्स हो सकती हैं? एंजाइटी, फियर, प्लेजर, स्ट्रेस एंड सिंपैथी। एंजाइटी मतलब अकेलापन, अकेलापन, मुझे लॉनलीनेस फील हो रहा है। व्हाट आई एम समटाइम्स यू नो कि हमें लॉनलीनेस फील होता है, हमें अकेलापन फील होता है, तो वी कैन फील बट नो बडी कैन सी। यदि मैं अंदर से बैठी हूँ और मुझे अंदर से लॉनलीनेस फील हो रहा है, मुझे एंजाइटी फील हो रही है, तो इट मीन्स इट्स अवर फीलिंग्स, है ना। अ फियर मतलब समटाइम्स आई एम जस्ट वॉचिंग अ हॉन्टेड फिल्म या हॉरर फिल्म एंड आई एम जस्ट लुकिंग कि आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ फियर। तो फियर, तो यू कैन फील बट नो बडी कैन सी दिस फियर, ओके। दे कैन फील ओनली एंड यू कैन फील ओनली। प्लेजर मतलब खुशी, ओके, व्हेन यू आर गेटिंग गिफ्ट्स, सो इट्स अ प्लेजर फॉर यू, ओके। स्ट्रेस यानी कि यू नो एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई एम हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, ओके, तो वो स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है, नो बडी कैन सी, ओके। देन सिंपैथी, like you know you are having sometimes you are going to the sometimes you are going to anywhere and you just see one cow or one dog and it's like injured animals, you are looking one injured animals, तो उसके प्रति आपको क्या होगा, एक सिंपैथी आएगी, करुणा आएगी, लाइक सिंपैथी। तो वो सिंपैथी यू कैन फील, ओके। उसे हम उसको सिंपैथी को हम सिर्फ बता सकते हैं कि मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते, उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसे हम टच नहीं कर सकते, बट उसे हम फील कर सकते हैं। देन आता है स्टेट्स, इट्स अ बीइंग फ्रीडम, फिर माइजरी, देन लग्जरी, ओके। अब लग्जरियस, आई एम लिविंग लग्जरियस लाइफ, ओके। अब वो लग्जरी क्या होती है, फील करने वाली होती है कि यस आई एम हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम लिविंग लग्जरियस लाइफ। देन ऑन इमोशंस, एंगर, आई टोल्ड यू that I'm screaming and I'm shouting when you are making some chaos and some unexpected things in the classes. So ma'am is shouting and ma'am is showing the anger. So you can feel the anger. Yeah, ma'am is angry, but
you cannot touch, you cannot see. Then hate, I hate you. Joy, बस when you just ना कि your mummy is giving birthday party, so you are just enjoying the day, you are enjoying the party, you are just fun. So they all are feelings. Okay, you can see gifts. This is in physical form, so you can see the gifts, but you cannot touch your joy, your feelings. Okay students, then आती है qualities. अब जैसे आई एम वेरी ऑनेस्ट गर्ल, you are very intelligent girl. Okay, she is very passionate girl. Okay, courageous girl. Okay, तो courageous तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव. और स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लास में एडजेक्टिव पढ़े होंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होती है. डिस्क्राइबिंग वर्ड से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होती है. जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उन्हीं वर्ड से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करते हैं. जैसे ब्रेव इज एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. लेकिन ब्रेवरी उसकी क्वालिटी, उसको क्वालिटी शो कर रहा है. तो जो क्वालिटी होती है वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है. ओके स्टूडेंट्स, देन कॉन्सेप्ट, चैरिटी, डिसिट मतलब किसी को चीटिंग करना. तो you can feel that she is doing cheating, but you cannot touch. Okay, comfort, democracy. then आते हैं moments, birthday, any events, wedding, birthday, set जो होते हैं वो, childhood. Okay, marriage, career and death. all are coming moments. तो कोई भी प्रकार का जो इवेंट्स होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा. अब सी हियर वन पार्टी इज देयर, सो यू कैन सी द कॉन्क्रीट नाउन ऑल्सो एंड यू कैन सी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. दे आर हैविंग फन, दे आर एंजॉइंग द पार्टी. सो फन एंड एंजॉइंग पार्टी you can feel, but you cannot touch there only. Okay, so abstract noun means things or emotions we can feel, but we cannot touch, we cannot see, we cannot taste, we cannot hear. See, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आपको मैं उदाहरण दिखाती हूँ. ब्रेवरी यानी कि आप बहुत बहादुर है. ओके, आपकी बहादुरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, तो स्ट्रॉन्ग बॉय के पास क्या होती है, स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्ग बॉय के पास क्या होगी, स्ट्रेंथ. तो वो स्ट्रेंथ क्या होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी. ओके, एक्साइटमेंट, आप बहुत उत्तेजित हो रहे हो, लाइक यू नो कि आपने बहुत न्यूज़ सुनी है, बहुत अच्छी वाली न्यूज़ सुनी है कि नहीं, आपके बहुत अच्छा आपको गिफ्ट मिलने वाला है. तो व्हाट एक्साइटमेंट आपके अंदर आता है, दिस एक्साइटमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स. चाइल्डहुड. ओके, फ्रेंडशिप, you are having friends. Friend is friends you cannot see, they are in physical form, they are person you can see, you can touch. But your friendship, yes, you can feel. We are very good friends and our friendships are very true. So happiness. Okay, love, anger. तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब आपकी फीलिंग्स है. ओके, अभी हम सेंटेंस पढ़ेंगे यहाँ पे. वी हैव टू गेट द ट्रूथ ऑफ द मैटर. वी हैव टू गेट एट द ट्रूथ. ट्रूथ क्या हो गया, सच्चाई. अब मैं सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ, है ना. आप उसे लेके नहीं जा सकते, आप उसे सिर्फ देख नहीं सकते, सब फील कर सकते. यस, she is saying truth or she is saying false. Mary isn't the type of person who gossips. यहाँ पे gossips मतलब जो gossip करते हैं ना, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो gossip यहाँ पे क्या है, एक फीलिंग है. ओके, तो ये एक क्या है, स्टेट है. तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स. फेथ मतलब विश्वास. पीपल क्या करने,
पीपल को क्या हो गया, बैंक से विश्वास हट गया, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि फेथ विश्वास हम उसको टच कर सकते हैं। आपको मुझ पे फेथ है, आपको भगवान पे फेथ है, तो वो एक हमारी आस्था है, तो वो एक हमारी फीलिंग्स है, वो हमारी इमोशंस है गॉड के प्रति, तो उसे आपसे फील कर सकते हो, उसे आप फिजिकल फॉर्म में उसे आप टच नहीं कर सकते हो। ओके, आई वॉज delighted at the news of her success. अब your success you can feel, but nobody can see. They laughed at my idea. अब जो आपके ideas आते हैं, they are also called abstract noun. Alex had a fear that he would fall down. Fear, मैंने आपको बोला था ना कि this is the one kind of condition. Okay, वो condition है जो आप भी महसूस कर सकते हो या दूसरा महसूस करते हो। आप डरे हुए हो तो सामने वाला महसूस कर रहा है कि आप डरे हो आपकी शक्ल देख के, लेकिन उसको आप कैसे ले तो नहीं जा सकते ना डर को। शी ट्राइड टू रिस्ट्रेन हर एंगर। ठीक है, यहाँ पे एंगर वर्ड आ गया कि वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रही है। तो क्या है गुस्सा, फीलिंग्स है। डोंट एस्टिमेट योर ऑन स्ट्रेंथ। अब मैं बोल रही हूँ आपके पास स्ट्रांग बॉय है, तो स्ट्रेंथ बॉय के पास क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, तो स्ट्रांग से क्या बन गया, स्ट्रेंथ बन गया। सैमुअल हैज़ ए गुड साइड एंड एविल साइड, मतलब उसकी गुड साइड है, गुड इज आल्सो एंड एविल साइड। एविल इज गुडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एविल इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टूडेंट्स, here is list of abstract noun. You can read, you can see. Okay students, so I think you understood what is an abstract noun. Abstract noun means we cannot see, we cannot touch, but we can feel. Okay, so abstract noun is precise in intangible form. Okay, so see, look all the concepts. Okay, they all are abstract noun. confusion, I am confused, confusion हो रहा है, तो वो confusion हो रहा है वो आप फील कर सकते हो, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिसअपियर, डिलाइट, चलिए हम लेते हैं डिलाइट, मतलब खुशी। तो खुशी भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हम खुश हो रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। बार बार मैं ये की बात बोल रही हूँ कि हम टच नहीं कर सकते, हम टेस्ट नहीं कर सकते, कि मतलब आप जस्ट यू कीप इन योर माइंड कि वी कैन नॉट यूज़ अवर 5 सेंसेस टू सी, टू टच, टू टेस्ट, टू हियर एंड टू स्मेल। वी कैन only feel, and it may be in many forms. Okay, in emotions form, feelings form, concept form, quality form. Okay students, so I hope you understood what is an abstract noun. Students, you have to watch the video till end. Okay, now in live class I will ask about 5 abstract noun. 5 abstract noun मैं आपको लाइव क्लास में मैं आपको 5 abstract noun पूछने वाली हूँ, और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ओके, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड यू गिव मी आंसर इन लाइव क्लास. So till end, please you just watch the video and understand the things. Okay students, to watching the video, you have to watch the video helps you to understand the topic, to clear your concept, to remove your queries. Okay students, thank you.